मैं दूंगा ना पैसे। तुम्हें चेयरमैन बना देंगे ना, चेयरमैन एमिरेटस, हाँ, चेयरपर्सन। जिसको 5% सैलरी मिलेगी और 5% ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। नो, वो आई महीने में वोंट एक बी। बार आएगा, उसका काम होगा शेयर्स वर्ल्ड मेरे वाइड को स्कूल खोलना। शेयर्स मेरे को 50%, 60% मेरे को मिलेगा। अभी तुम्हारा काम वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस खोलने का है, एक्सपेंशन, लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन, बिकॉज यू विल बी यंगर। जी, उस हिसाब से हाँ जी। ज्यादा मेरा होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, जो नए स्कूल खुलेंगे उसमें तुम्हारा होगा, पहले स्कूल में मेरा ज्यादा होगा, जिससे कि मैं सुरक्षित अच्छा, हो जाऊंगा। तुम्हारे पास तो बतेरा टाइम होगा यार, मेरे पास होगा ही नहीं। अब करोगे मैं क्या इतने पैसों का? नई दांत बनवाऊंगा। नहीं दांत। पुराने तो टूट जाएंगे सारे तब तक, ऐसे ऐसे। ग्रेविटेशन। दांतों की ग्रेविटेशन होगी, फ्री फॉल। हो गई जी, हो गई। ओके, सो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, 9वीं क्लास में पढ़ा था ये। जी सेम ही है। न्यूटन जी के एक्सपेरिमेंट आ गई थी। यस, बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, कॉपी बुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ग्रेविटी ऑन द कॉन्ट्ररी इज अ स्पेशल केस, अर्थ के साथ जब होता है, हम्म, it is gravitation, but it is special case where one of the attracting bodies is earth, गुरुत्वाकर्षण and शक्ति। object is lying on the surface of the earth or close to earth. एक second, give me 1 second please. नहीं, you continue. Gravity, gravitation. Okay, so let's talk about third, which is acceleration due to gravity. This also is part of the gravity, but now it is the acceleration which is provided by the earth अर्थ। to any object. Okay, so ये this हमने is the, काइनेमेटिक्स में देखा था। yes, so नहीं सर, free fall डायनेमिक्स में, में, सॉरी। yes, so the acceleration produced, the और यहाँ फ्री फॉल acceleration के अंदर। produced in free fall, okay? And the motion of body under the influence of gravity is called free fall. That motion is described as free fall. Okay. Acceleration due to gravity is written as g. We already know that. ये kinematics में हमने पढ़ा ही हुआ है. And it is, the value is 9.8 meter per second square or 32 feet per second square. Some terms for us. These are the terms we have to know. Okay. Weight of the body. Weight of the body. Okay. What is it used for? It's a measure of gravitational force experienced by the body. Force experienced by a body because of attraction towards the center of the earth.
vector quantity. Since G varies from one point to another, weight also varies. Any questions in your mind? Except for the last line, that weight varies throughout Earth. अलग अलग जगह पे अलग अलग weight आता है, क्यों आता है वो अलग है. We'll study that. Okay. Let's talk about the first law which is used in this is the Newton's law of ये चीज भी न्यूटन ने करी है, मतलब सब G. कुछ. क्या है वो बंदा? Gravity. Newton's law मौली of बाबा है वो. gravitation. Yes. So Newton's law of gravity assumed Earth to be basically a sphere. Okay. And नहीं, मेरे सामने तुमने वो भी खुला छोड़ा, कल तुमने हमारा भी खुला छोड़ा और रात में खुला रहा. okay, thank you. Background noise gone. Okay, so the law is force is equal to G m1 m2 by r square. मतलब the force of attraction is equal to the product of the two objects attracting each other and inversely proportional to the distance between them sent from the center. So it could be another body. Okay. So distance is measured from center to center. Okay. So force the Newton में है. What is G equal to? So if you put m1 is equal to m2 is equal to 1 kg and r is also equal to 1 meter. So the force becomes equal to G. So the force between two masses of 1 kg when they are separated by a distance of 1 meter gives us the value of G. And the value of G comes out to be 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton per meter square per kilogram square. So if there are two masses, both of 1 kg, separated by 1 meter, the force of attraction between them is this. And G is F is equal to G आता, so G is defined as that force. So ये conditions, put these. M1 is equal to M2 is equal to 1 kg, R is equal to 1 meter. C fixed value. Yeah, fixed. Gravitational constant. Gravitational constant. Anywhere in the universe, if there are two masses of 1 kg separated by 1 meter distance, this is the value anywhere. It's a universal constant. It doesn't depend on size and shape and mass of the bodies, etc., etc. It's per meter square, per kilogram square, it remains same. That is why it is called as universal gravitational constant. ठीक है? ठीक है. Okay. Okay, so what all does it help in? For example, you have this example जहाँ पे बॉडी घूम रही है, ये मान लो यही सिचुएशन है कि the bigger circle which you see is the circle of, okay, for example, Earth, and the moon is this. So there is a force of attraction between them, which is F is equal to
G m1 m2, G m Earth, m Moon divided by r square. Okay, so these two together, they have this क्या force अर्थ is और ये mutual. मून है? हाँ ये अर्थ और मून है ना? हाँ. So this force is appearing, helping provide the centripetal force to the moon, so that it can move around. Sorry, ये ऐसे थोड़ा मूव करेगा, ये थोड़ा सर्कल ठीक कर दें थोड़ा सा. If it is moving around it, then it will revolve around it like this. Yes, right. So draw one more circle. ये तो हो गई आपकी अर्थ, प्लैनेट का है मून. हाँ, right. So this revolution, this is happening. The force is coming from here. The centripetal force. Elliptical orbit नहीं दिखाने की जरूरत है. We can show circular orbit here. True orbits are elliptical, but हम बन गया circle दिखा. इलेक्ट्रिकल. So we can show circle. Circular orbit is fine. Circular orbit, ठीक है. So mb square by r के बराबर होगा. यहाँ से सेंट्रिपिटल फोर्स आ रही है. Yes, and it's mutual force, by the way. Even the earth is getting pulled by the same force. It's a mutual force of attraction. Earth is heavier. हाँ जी. इक्विलिब्रियम सॉर्ट ऑफ. Equilibrium is net force is zero on अच्छा, each of the body. मतलब आप कह रहे थे कि सेम फोर्स अर्थ भी एक्सपीरियंस कर रही Mutual, है. हाँ हाँ. It's a mutual force of attraction ना. If there are अच्छा. two masses, they attract each other. जो भी F की वैल्यू आती है, मान लो this is your mass number A, mass number B. They are attracting each formula लगाया. G m1 m2 by r square equal to 5 Newton आ गया. So this mass is experiencing 5 Newton attraction towards this side, and this mass is attracting 5 Newton and is also feeling the same force. Both are feeling the same force. You want to show it in a reverse manner so that you can understand. You can show it like this, that the mass on the left is experiencing a 5 Newton attractive force towards the right. The mass on the right is experiencing a leftward force of 5 Newton. So equal and opposite direction. Both the masses are experiencing the same force, F, which is the force due to gravitation. ठीक है? Okay. So you could apply here, since mv square by r. So centripetal force, the source actually is the gravitation. So this law helps you understand why the planets are revolving around a larger sun, star, etc. This is the reason, mv square by r. Next, very important again, the vector form of the law of gravitation. Because it's a force after all, so it has to be a vector. So if you are here, for example, and you have one mass here and one mass here, and this is 60 degree, and you have to write the expression of force. So the force, mutual force, will be equal to the force experienced by A because of B is in this direction. So force is equal to G m1 m2 by, so this is 3 meters, 3 square, and the direction, okay, is this attraction, right? So it is positive. So you can write it into two parts. One part is in this direction, so it will be sine 60 and sine and cos 60. So this is sine 60 part and this is cos 60 part. So root 3 by 2 j plus g m1 m2 by 3 square into 1 by 2 I. So you can write this like this, that if f is the magnitude at an angle of theta with the x-axis, then f sine theta j plus f cos theta I is the force. And this is mutual. So if you have to write the force on B, just do one thing, that ये वाला वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर लो. तो इसका जो force होगा, force experienced by B due to A will be minus F sine theta
J minus F cos theta I. जस्ट रिवर्स, क्योंकि इसका कंपोनेंट अगर देखेंगे तो x वाला यहाँ होगा और y वाला यहाँ पे होगा. तो दीज आर रिपल्स, मतलब ये b के ऊपर जो मैंने ये b के ऊपर ड्यू टू a and this is on a due to b, first quadrant. So this is third quadrant. So this is a vector form of, so you can write vector force as a vector also. ठीक है. That is what it means. इससे ज़्यादा कुछ मीनिंग नहीं है इसका. हम्म. Okay, so it is, what are the factors on which it depends? Obviously, the mutual gravitational depends on the mass of the two bodies. It is inversely proportional to the distance. It is independent of the medium between them. Independent of the medium between them. So if you have water between them or you have air between them, doesn't matter. So independent of the medium between them. This is one. The second is the mutual gravitational force is equal and opposite. ये भी पता चल गया. So its characteristics are equal and opposite. This is another. This appears very close to, action and reaction pair. हाँ जी, हाँ जी. Something like that. And it is Third law of equally true motion for जैसा. yes, equally true for a point mass and a rigid body. उसका center of mass होगा तो वहाँ पे apply होगी gravity. Okay. Fourth, magnitude depends inversely on R, directly on product. Okay. So it's a conservative force. So if you do work in it, it will get stored. If you lose work in it, that also will get stored. You will not lose anything. That is mg. The gravitational field is all around, right? This is your some part of the earth. So you have gravitational field here. So whatever body goes up, down as a projectile, so you give it kinetic energy of 5 joules. At the highest point, the complete energy is, some part of the energy is kinetic because of horizontal component. तो मान लो horizontal component 1 joule था, vertical component 4 joule है, तो यहाँ पे तो 1 joule ही रहेगा ये, बाकी, लेकिन बाकी सारा जो vertically गया था ऊपर, वो 4 joule यहाँ potential बन जाएगा, get stored as a potential energy in the body, and then when body comes down here again, the whole energy is 5 joules. So whatever you provided by way of half mv square here in x and y direction is not getting lost in a gravitational field, because this body is moving under the influence of a gravitational field of Earth, and it is experiencing force towards the center of the Earth. So it's a conservative force. It's not dissipative. It conserves force. Gravitational force जब किसी के ऊपर लगती है, तो whatever work is done is not dissipative work. That work gets stored in the body in the form of potential energy. Okay? And the gravitational force experienced between the two bodies is independent of the force which a body may be experiencing due to presence of other bodies also. So इन दोनों, ये 3 bodies रख दो आप, इन दोनों की force का formula change नहीं होगा. It will remain F is equal to G m1 m2 by r square. There will be no extra element like m3 and all that coming in. So this is m1, this is m2. You have to find resultant force. Then one is this, and you will write, if you're calculating on this, so this is attractive, this is attractive, make resolution like this, and this, and this, and this. ये वाला component add हो जाएंगे, ये वाले component subtract हो जाएंगे. Put x, y and answer. Maybe this angle is 30 degrees. This angle is 60 degrees. And so these are at 90 degree. Find the resultant. X वाली direction में same है, और net force आ जाएगी because of two masses, m1 and m3 on m2 और m3 की वजह से on m1. So you can apply vector algebra to this, and there is no need of considering because of introduction of a third mass, you need to change a formula. There is no change at all.
So it is pretty much independent of presence of another body. The force between two bodies is independent of presence of a third body. It doesn't matter. The formula remains same. So you can apply your principle of superposition, treat it as a normal force. एक 5 न्यूटन की, एक 4 न्यूटन की, इतने एंगल पे उसका x कंपोनेंट, उसका y कंपोनेंट, y कंपोनेंट को ऐड कर दिया, x को भी ऐड कर दिया, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लिया. अप्लाई एनीथिंग यू वांट टू when it comes to vectors on this in this chapter, because you're dealing with a force which is vector. ठीक है? Any doubts? I think you're good in this, the vector part of it. हाँ जी. I think you understand it pretty well. That it's I'm dealing with a force, whether you can call that force as a Coulomb's force, gravitational force, magnetic force, mechanical force. Component खत्म हो गया. 4 रख दो, square पे रख दो. हाँ, resultant आ जाएगा. Attractive है, इतना पता होना चाहिए कि this is not like a charge plus and minus. It has to be attractive, right? खत्म. So much for your gravitational force characteristics. Next, shell theorem. Shell theorem, अरे वाह, नाम ही ऐसे है. No, it's a shell. So we will deal with the shell, मतलब खोखला. खोखली. Can say. So empty inside and like this. So this is a shell of some thickness, and you have to find the force experienced by a body which is inside the shell and outside the shell. This is the case you're dealing with. Okay. And the assumption is that this spherical shell, okay, this shell has symmetrical mass distribution, which means every square meter, because it's a sphere, every square meter has same mass. It's not non-uniform. कि कहीं पे ज्यादा surface पे ज्यादा हो गया तो it's uniformly distributed. Some sigma kgs for every meter square. And then you are considering a point P outside of some 1 kg और m mass per kg भी निकालना है इसके ऊपर. But ये shell, I remember that it's not a solid sphere. Like Earth is a solid sphere, a moon is a solid sphere, a sun is a solid sphere. This is a sphere but empty, and the distance at which you're finding the gravitational force due to this is r outside the shell. यहाँ पे निकाल रहे. So you can imagine the various, if it's a rigid body kind of approach, then each particle on this shell, is exerting a force on the point P. Okay, so let the radius of the shell be r, and it's of negligible thickness. And if you remember the rigid body approach, instead of worrying about so many dots, apply the principle of symmetry and say, okay, this is a scenario where the center of mass is at the center, outside the shell. That means at the center. So center of mass भी पता चल गया. So whole mass is concentrated at the center O. This is where the whole mass is concentrated, at the O. ठीक है. And the force which is experienced, Gmm by r square. So instead of worrying about the whole shell, just imagine that it's a mass which is concentrated here, and you can easily calculate it. ठीक है? So remember that the force is only in this direction, attractive. Even though I said you have so many masses, but remember, for every mass there is a corresponding symmetrical mass. If this was the mass, there is a symmetrical mass here also. So if there is a attractive force being experienced in this direction, then there is an attractive force being experienced in this direction. If I resolve this, I can resolve it like this. So you can see when I resolve it,
these two cancel each other with the y components, and the x component add. And therefore, due to the whole shell, the direction of force being experienced by the mass m, right, is in the line joining the center of the shell and the mass. So along the center only. जहां भी रख दो इसको, कहीं भी उठा के रख दो, तो you will, that line will decide the, na? For example, you shifted the mass here. Okay, so if the mass is lying here, for example, right? Same situation. Again, the force of attraction will be here. So the force is only in one direction, although we are considering so many dots, but we put that assumption to rest by saying that this sphere, complete mass is at its center only. And therefore assume this to be at the center and therefore calculate. So the line joining the two masses always gives the direction of the force. Like in normal case, जैसे अर्थ है और मून है, उनके जो सेंटर होते हैं उसके along होती है वो attractive force, ऐसे नहीं होती है कहीं पे. It has to be along the line joining the two centers. ठीक है. Okay, so this is one case of a shell, and let's talk about and let's look at the second scenario. This is shell, and now let's talk about uh, second one, which is when the mass, it's not a shell, it's a solid sphere. Now you're up against a solid sphere, and you are a body, a point mass, and so you are, let me just draw it here. So since this is a solid and not a spherical shell, and it has this also is assumed to be a uniform mass density. The only difference we have to do is if you consider three places for which we have to calculate. So one, of course, is like we did for a shell. So we assume that पूरा का पूरा जो इसका जो mass है, okay, वो यहाँ पे concentrated है. तो ये पूरे शेल की वजह से जो निकलेगा वो सेम फॉर्मूला जो ये वाला है ऊपर वाला, that gets applied. Okay, ठीक है. so अरे, ये क्या हो गया? Wait, white ink हो गई है. Let me change it. White ink को कैसे बदलना है भाई? राइटिंग को भी. मैंने white ink करी ना अभी इसको बनाने के लिए. तो अच्छा, वो तो कलर्स में जाके सिलेक्ट कर लो पेन के ऑप्शन में. कलर में कहाँ पे? सर पेन का ऑप्शन है वहां पर ना, एक ब्लैक कलर का ना एक बॉक्स होता है, हाँ है, उसको क्लिक तो कर उस रहा हूँ, पर white क्लिक आ रहा करो. है, हाँ, ग्रीन तो आ गया. उसको. अच्छा, कलर आ गया ब्लैक पे. ओके, सो आई एम ऑन ब्लैक नाउ, गॉट इट. ओके, वही दिख नहीं रहा था. हाँ, बन गया ना ब्लैक. ठीक है, ठीक है. सो नाउ फॉर अ सॉलिड स्फीयर एट द सेंटर you can calculate, and then you can also calculate on the when the you know the mass is on the, so the same mass which is here, okay, keep it here on the surface. Then what happens if you keep it on the surface? Only thing is the distance between them is changing. But if it goes inside, okay, then what happens? So ये अब अंदर चला गया, ठीक है. right? So this is inside. Now the external mass plays no role. जो इनके बाहर है ना mass, that plays no role. So ठीक if है. I were to, ये क्या बन गया? तो ये वाला जो पार्ट है masses का, this is horrible यार, क्या हो रहा है? Wait. Mm-hmm. So I will just, तो ये वाला जो मास है, ये वाला, ये अब दिख ही नहीं रहा.
Let me change the so this mass will play no role. So what you will do, you will apply ratio proportion, and you will say that radius or the distance which we are considering in so and so at the center, r distance ले लेंगे हम इन दोनों के बीच में. एक सेकंड, पहले तो let me make it simple one. हाँ, अब ठीक हो गया थोड़ा. Shade better than. Okay, so you can, when you have a solid sphere kind of situation, this is a case of solid sphere. Ratio proportion वाला mass लेना है. We will see how it take it. I have selected not white. ये अभी भी white लिख रहा है यार मेरा. Blue लिख रहा है अभी. नहीं यार, सर्कल बनता जा रहा है उससे. और जो इंक वाला टैब है, पेन, सिलेक्ट करो ना कलर इंक वाले टैब में जाके. कर दिया ना, वही तो नहीं हो रहा. ब्लैक कर लो, सीधा ब्लैक करो. वेट, यू डू दिस यार, देखना जरा तुम्हारी साइड से हो सकता है ये. मैं अपनी साइड से तो नहीं कर सकता, वो आपको अपनी साइड से ही करना होगा. वेट, वी हैव टू बी, क्या करने यार, एक मिनट. इसमें डाला, ठीक है, अब आया. Okay, so this is solid sphere. Before we get into solid sphere, let's discuss the shell wala case. Okay, so I'll just bifurcate them. Okay, so shell is first one. So shell का एक केस ये भी हो सकता है, जैसे कि हमने इसके अंदर देखा कि we can have this body P inside the shell. ठीक है. Here. Now this is a unique case where the shell is inside the. So now the gravitational force is 0 inside the shell. Case 2. Okay, so R is greater than R. This is one case. And equal to also. So you can change it accordingly. Put R is equal to R if it is on the surface of the shell. इधर. तो दो केस तो यहाँ कवर हो गए. बट अगर अंदर ले आओगे, inside the shell, then force experience becomes 0. And so R less than R, F is equal to 0. There is no force experienced by the, because if you calculate it, it will get cancelled. For example, your mass is here and you calculate it and try to apply vector on this. So take this, for example, one mass is here and the other mass is here. Okay, and one mass is here, point mass is here, point mass is here. So whatever force is being experienced by this, the net force, there is a corresponding ये और ये दोनों है, right? So ये attract होगा यहाँ से और यहाँ से, cancelled. Net force being attractive force experience gets cancelled by all the elements. So if you take a mass and put it inside a shell,
no force is experienced by the mass because of cancellation of all the attractive forces coming from the parts of the shell. ठीक है सर इवन व्हाइट बोर्ड हट गया एकदम नहीं है? दोबारा से करना एकदम से हटा एक बार 1 मिनट, जूम कर रहा होगा ये। हाँ जी बताओ, आया? अब आया ठीक है, let's go to solid sphere now. Again, solid sphere का I think the first case is very straightforward. सर इंक फिर व्हाइट आ रही थी 1 मिनट, मैंने तो अब कर दी, मेरी ब्लैक है। आई एम गेटिंग द ठीक बटन क्लियरली, पहले आ ही ठीक नहीं रहा था मेरा। सो हम्म, सॉलिड स्फीयर में वन केस नंबर 1, हम्म, r is greater than equal to r. Okay? ओके So f is equal to g m1 m by r square. Okay. This is the case number 1. So we will take now let's take a case where the mass is inside and there is a smaller sphere. R is less than r. R is less than r. So then, you know, uh, instead of the whole sphere, only this part of the sphere will act on it. Okay, so this r now is less than r. So this is r and this was capital R. So the distance between the two masses is less than r. So पहले तो आपको जो वो लेना है मास, उसका एक्सटर्नल मास का वो कम लेना है रेशियो प्रोपोर्शन से. दिस इज व्हाट वी एग्रीड टू, ठीक है that we will now take this part only, right, which is the lesser part, inside वाला जो है. Only this one will act. ये यहाँ तक एक्ट करेगा या उधर तक एक्ट करेगा? हाँ जी इसका जो एक्शन होगा, अच्छा ये दिस इज अ, इट हैज नो रेडियस ऑफ इट्स ओन एंड दिस इज द, ओके, सो दीज आर पॉइंट मासेस बाय द वे. जो ग्रीन में बने हुए इनका कोई रेडियस नहीं है अपना. So these are ठीक point masses. हाँ So ठीक the orange one is also a point mass. So it has no it is dimensionless. It's a point mass. It is lying here and the distance is r. So we know 4 by 3 pi r cube का mass m है, 1 का mass है m upon 4 by 3 pi r cube, और 4 by 3 pi r cube का mass है 4 by 3 pi r cube is equal to r cube by r cube. So your mass of the smaller part now is equal to this रेशियो प्रोपोर्शन से, जो मैं डैश डैश दिखा रहा हूँ उसका मास ये हो गया ना. हम्म, डेंसिटी तो सेम है, यूनिफॉर्म मटेरियल है, डेंसिटी सेम. So the mass of the r radius is so much, and now let's apply the force formula on this. Gm into mass of big into the point mass divided by the distance between them, which is r square. M big is now is this much only. So this will be g m big r cube by r cube into m upon r square is equal to g r m by r square. ठीक ओके और छोटा मास भी तो आएगा कहीं पे, ये रहा. एंड आई थिंक डिमेंशनली गलत है थोड़ा सा. अच्छा ये एक आर कट गया इसका, ये वाला आर क्यूब जी आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर था नीचे, तो ये आर हो गया. तो जी एम एम बाय कैपिटल एम भी आ गया आर क्यूब. यहाँ से क्या फॉर्मूला निकाला था हमने? आर स्क्वायर बाय आर क्यूब है ये फॉर्मूला, सॉरी. सो दिस इज आर क्यूब. तो द फॉर्मूला इज जी एम एम आर बाय आर क्यूब. Force experienced by a point mass inside a large mass of sphere of radius capital R. इसमें वो जीरो नहीं होता जैसे शेल में हो जाता है ना जीरो, ठीक है इसमें जीरो नहीं होगा.
Okay. Okay. So let's do some numericals now. Numericals. Yep. On law of gravitation. Now that we understand some portions of it. This is chapter number This is chapter number 6. 8. 8. हाँ 6 जी. कौन सा है? 6 are system of particles. Okay. This shouldn't be 7th. No. No, this should be 7th one. है ना? Yeah. हाँ. नहीं, अच्छा, एक मिनट. 6th was work power energy. ठीक है. नहीं, 6th was that. एक मिनट. पहले था units, फिर से बाद motion in Dynamic. a straight line, plane. फिर plane. तो था वो 8th है ये. था laws of 8th. motion. 8th. नहीं, 8th. this is not 8, this is 7th. 7th है ये. हाँ. वर्क पावर एनर्जी रोटेशनल. फिजिकल वर्ल्ड रिलेटेड है ना, तो इसे अच्छा, 6 इसलिए हाँ, 7 है. वही इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि हाँ. कौन सा वाला गिना जाएगा ये. फिजिकल वर्ल्ड इस पे फालतू मतलब वो जेसी पे हटा होगा पक्का. मींस ठीक ही है वो. हाँ मतलब More of general knowledge then. यूनिट से मेजरमेंट भी फिजिक्स नहीं थी, वो भी मैथ्स ही था. यो. इसमें बड़े सैटेलाइट सूटेलिटी के क्वेश्चन आते हैं. वाह जी स्पेस. वाह, कितना मुश्किल क्वेश्चन है. इतना मतलब बहुत मुश्किल है या फिर काफी रखे मुश्किल हुए है. क्वेश्चन होते हैं ना जो काफी बहुत मुश्किल है. फॉर्मूला फिटिंग होती है शुरू में, तो वैसे भी. काफी मुश्किल है तो. बहुत ज्यादा. टेन सेंटीमीटर. और हमें 10 ही लेना है ना. और 10 लेना है ना. R10 लेना है. डिस्टेंस बिटवीन मतलब द टू. 0 पॉइंट. यस 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 यस, वेरी मच. मैथ्स का पेपर तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है देख के. डिसअपॉइंटिंग मतलब कैसा क्या हो गया है? इजी मतलब पूछा ही नहीं कुछ. नहीं वेरी ठीक, मुझे लगा कि मतलब क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है. ये तो कोई नई बात तो है नहीं वैसे. हाँ, ये बात भी है. They have been doing this सिंस एजेस. actually. अमिटी इंटरनेशनल स्कूल, अमिटी. मैं डीएवी जा रहा हूँ अगले साल. DBA. डीएवी. हाँ, दयानंद आर्य ना. Excellent. Dayanand Aryananda Vivekananda something. Arya Vivekananda. Better school. I have seen a lot of toppers from there. टॉपर्स इनकी क्वेश्चनिंग एकदम खतरनाक होती है. घर के पास है. क्या? बहुत घर नहीं के पता पास है. मेरे को. ओके.
निकल गया। 10⁻⁻⁹ आ गया आंसर। न्यूटन। ओके, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं और लड्डू ले जाएं। बेसन का लड्डू। लड्डू खाओगे? बड़े में वो मोतीचूर के। अच्छा, मेरे पास बेसन का है। मैं नहीं खाता यार ये। वैसे तो पहले से तो अब बहुत चेंजेस नहीं, हो मैंने गया। भी, आप कहते हैं ना, शुगर कम कर दिया अपनी डाइट में से। बेकार आइडिया कार्ब्स है। भी कम कर दिए। मैंने कम नहीं करे, मैं तो अब खा लेता हूँ थोड़ा सा। बहुत सजा दे दी अपने को। मैं ना घिया और गाजर के रोटी। ओए होए, गाजर की रोटी कैसे बनती है? मतलब आटे के अंदर ना घिया गाजर डाल देते हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ। फिर बस नहीं हो पका गई। हुआ कच्चा? कच्चा। अच्छा, ओके, ये कभी नहीं हमारे खाया घर यार। हमारे घर में ऐसा होता है। नाइस, ऑर्गेनिक। अच्छी लगती है। अच्छी लगती है खाने में। आई हैव नॉर्मल नेवर रोटी ईटन। से थोड़े कार्ब्स कम होते हैं इसमें। ओके, और बाजरे की रोटी? बाजरे की रोटी मैं नहीं खा सकता बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं खाई जाती है। मैं तो खा लेता हूँ भाई, बाजरा। एक ना, मैं ना रागी का कुछ तो होता है, चीला सा खाते हैं हम्म। हमारे यहाँ। हम्म। विथ से वेरी टेस्टी। उसका डोसा भी होता है। सॉर्ट ऑफ। रागी डोसा। विथ हमस, सेसमे के साथ, सेसमे वाला हमस। फिर हमारी मेड इतनी ट्रेंड नहीं है कि ये सब बना ले। हमस वमस छोले बना देगी बस। खाने की बात करते रहो, बड़ा मजा आता है। ओके, पढ़ो इसे। पढ़ लिया? बस हो ही गया बस। जुपिटर, कैपिटल एम, 2 मास दिए हुए हैं, द मीन डिस्टेंस आर इज नोन। ओके, क्या स्पीड भी निकालनी है? सेंट्रीपिटल, सर्कुलर देख के सेंट्रीपिटल, एम बी पहले स्क्वायर बाई एफ आर। निकाल लेंगे। यस, दैट इज करेक्ट। जुपिटर बहुत बड़ा प्लेनेट है यार। हाँ, बहुत सारा। मंगस ह्यूज। अर्थ के क्या कहते हैं, 11 टाइम्स है वो। ये कहीं निकल आए यार, मतलब पेड़ हो रही है ना सब, पेड़, प्रॉपर्टी। वहां भी खरीद लेंगे प्रॉपर्टी। अच्छा सर, बताओ जी। जब आप आईटी इंडस्ट्री में थे, आप सर टेक्निकल रोल में थे कि नॉन टेक्निकल रोल में थे? दोनों। दोनों। अच्छा, मतलब कोडिंग करते थे या फिर कुछ और में थे? कोडिंग नहीं करता था मैं कभी भी। कोडिंग कोडर नहीं से मैं करी बहुत आपने? ऊपर लेवल पे ज्वाइन करा था मैंने, नहीं। तो मच आप अबव क्या कोडर। हार्डवेयर में थे या फिर क्लाउड। किसमें थे? हार्डवेयर में। क्लाउड एंड हार्डवेयर। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। आर्किटेक्चर। डेटा सेंटर वगैरह, सर्वर। आप रेड हार्ट में थे पहले? किसी टाइम पे। आपने फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्यों छोड़ा जब इतनी अच्छी पोस्ट पे थे? घटिया, पसंद नहीं आया मुझे यार इसको। मतलब आप सेल्स हेड थे नहीं, प्री एंड सेल्स। सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट। यूज टू बी। बट यू क्विट इट।
सर सर ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, ये जो वैल्यू है, हम्म इसको सर हम mv² r के बराबर ले सकते हैं क्या? yes, this is the source of centripetal force. Like a thread can provide some force, so जी tension becomes equal to mv square by r in thread. हाँ जी Similarly here, friction also provides centripetal force, जब हमने पढ़ा था. हाँ जी हाँ जी। So some source is required. तो हम जो है मतलब हमें r की वैल्यू पता है, द सन डिस्टेंस This 7.8 into 10⁻11 हाँ और मास ऑफ दी हमें सन यूज करना है। जी, तो फिर हम, हाँ, ठीक है, निकल जाएगा। जुपिटर का यूज करना है क्योंकि जुपिटर की स्पीड निकालनी है. अच्छा ओके, हमें जुपिटर करना सन की नहीं, सन बड़ा है. सन को है। स्टेशनरी माना है, इसको हाँ, मोशन माना है. ठीक है, फिर निकल जाएगा। ठीक है, डन, अंडरस्टूड ना. मतलब हाँ, मतलब फिर इसका अंडर रूट निकाल लेंगे और वेलोसिटी That is निकाल। correct. That is correct. दिल्ली बोर्ड। Delhi, Delhi, Sahir अब तो Delhi. खैर सर आप न्यू राजेंद्र नगर रहते हो ना? Yes, कचरा नगर. Lala Nagar. Yeah, super rich. Place for super rich, not for us. गुड़गांव में आ जाओ, दिल्ली रहने की वही जगह ठीक है नहीं। हमारे लिए. मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, मिडिल क्लास. मतलब यहाँ पर एटलीस्ट को पानी की दिक्कत नहीं है, ये सब वहाँ न्यू राजेंद्र नगर में आ रही है। यस, बोरिंग का पानी जिंदाबाद. बोरिंग? पूरा गुड़गांव इज डिपेंडेंट ऑन बोरिंग भाई. बोरिंग क्या होती है? वेल, अच्छा, ग्राउंड वाटर, ओके। दिल्ली में खत्म हो गया ग्राउंड वाटर, तो गवर्नमेंट सप्लाई होती है. गवर्नमेंट नहीं, अब तो सप्लाईज. रिवर से भी आ जाते हैं तो हरियाणा में। कौन सी? यमुना, विच रिवर? जमुना, जमुना। अच्छा, आ रहा है. ओ, हाँ आता है, क्यों नहीं आता? अब फिर हरियाणा में सप्लाई है। ग्राउंड वाटर तो अब खैर, अब तो काफी एक्शंस लिए जा रहे हैं कंजर्व करने की। वो तो खेती बाड़ी में यूज होता है इसमें। the plan is to have 24 cross water supply in Gurgaon. mv/r
सर ये आ रही है स्पीड, मतलब स्पीड निकाल ली, ये आ रही है, ठीक है, यही आएगी सही ना? है। ठीक है, परफेक्टो। इटालियन। सर अपना डिनर कितने से करते हैं वैसे? आज योगा क्लास ले रहे थे आप? यस, ठीक हो गया टांग का दर्द? बेटर, मच बेटर, मच बेटर। द फिर पेन वो इज, दे आर लाइब्रेरियन नॉट के पास ही मेकिंग। जा रहे हैं? नहीं नहीं, प्रॉपर टीचर था यार वो तो। he he's I think 6 years experience. वाओ, Good बस teacher, good शाना। 6 years ही बस? अबे आजकल यंगस्टर्स ज्यादा स्मार्ट है यार। सर मेरा मतलब मेरा पीटी तो 15 to 18 years है। You don't need this level of PT यार। मतलब सर वो ठीक से कराते हैं ना कि हर टाइप से कैसे करना है। हम्म, योगा एक थेरेपी होती है, कुछ गलत हो जाए फिर हाँ यही देने के देने समझ में लग आया। जाते हैं। That is my learning now. एंड I ही did इज। no joke. The mean orbital radius of Earth around the Sun is 10 raised to power 8. ओके। After 50, you should do a job which you love. That's all. नहीं नहीं सर, मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं तो भी नहीं लूंगा। That's, I am done with, finished. Never. Unless कि मतलब you have या financial तो सर मैं problem, एक बिजनेस don't need करूंगा। to. वो बेस्ट है। और लाइक अच्छा ये सेम ही फॉर्मूला है, mv स्क्वायर बाय आर, बट द अननोन इज मास। हाँ, ओके, ठीक है। तो रेडियस मालूम है, आर रेडियस मालूम है, मालूम है। मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ g m1 m2 हम्म, f इज इक्वल टू सो एंड सो। अच्छा टाइम पीरियड से आ जाएगा ना ये। तो अर्थ हम्म। टेक्स 24 आवर्स ना टू नहीं तो रिवॉल्व। निकल जाएगा अगर हमें मास ऑफ द अर्थ पता है तो। हमें मास ऑफ द अर्थ भी नहीं पता क्या? नहीं पता है, 365 डेज लगते हैं ना घूमने में पूरा। नहीं नहीं, मास ऑफ द अर्थ। हाँ, द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 π r/t। मेन डिस्टेंस तो पता है ना, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा ना। ये टाइम पीरियड कितना होता है, 365 डेज हाँ। इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। सो ये आर मीटर्स में है, तो वेलोसिटी आ गई सेंट्रीपिटल मास। और mv² / r इज इक्वल टू g m1 m2 / r²। तो इससे मास आ जाएगा, ये ये कट जाएगा, मास तो मास ठीक ऑफ है। अर्थ कट जाएगा, हाँ वो तो ठीक है। मास ऑफ ओ, सन आ जाएगा। ओके। अच्छा वो तो वेलोसिटी फिर ऑफ मैं अर्थ, इसकी वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अर्थ अर्थ पता पता होना है। चाहिए ना पहले तो। ये आ जाएगी ना वेलोसिटी ऑफ अर्थ। वो तो गूगल पे कर लेते हैं फिर क्या हुई एग्जैक्ट वैल्यू। तो टाइम पीरियड 365 डेज ले लेंगे ऑफ अरे बाप रे। रेवोल्यूशन। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, सरकमफरेंस तो टू अर्थ की पाई वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ, 29,784 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी है? 29 किलोमीटर पर सेकेंड। ओ माय गॉड। ज्यादा नहीं हो गया? होगी। इतना ज्यादा कैसे हो सकता है भाई अर्थ की? सन के अराउंड भी तो जाना है, इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो होगी मैं नहीं, तो लाखों एक्सपेक्ट कर रहा करोड़ों था कि किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर पर आवर होगा। नहीं नहीं, अच्छा यू हैव केप्ट दिस इन किलोमीटर एंड नीचे यू हैव केप्ट इट इन कन्वर्टेड इन सेकंड्स। ओके, 25 2 पाई इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁸ यही, दिस इज 100 मिलियन। ओ 100 मिलियन बाप रे, डिवाइडेड बाय। दैट्स अ लॉट। और स्टिल हमें कुछ फील नहीं होता है, इतनी तेजी से जा रही होती है अर्थ।
यस, So, समझ में आ गया कैसे करना है ये? हाँ हाँ, ये तो समझ आ गया। So two concepts, one velocity, second use velocity in centripetal. We know हाँ हाँ, velocity, mass of तो earth, जैसे हम प्रीवियस mass, क्वेश्चंस पे कर रहे थे। same. Use this concept. Velocity यहाँ से निकाल लिया और इसमें फिट करनी है velocity. मास ऑफ सन आ जाएगा, राइट? क्या? और ये बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी स्कूल टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, part of M is broken into two parts, M1 and M2. How are M1 and M2 releft? Releft क्या होता है या related होता है ये? राइट, और यार ये क्या नहीं, related ही है ना ये? है? यस. हाँ हाँ. So that the gravitational force, gravitational attraction between और फाइंड अ the रिलेशनशिप, मतलब parts. M1 is double of M2, M1 and M2 are equal, something like that. Oh, ये कैसे? Split कर लो, let one mass be M1, the second mass will be capital M minus M. हम्म, Right force, you have to maximize force, dF by dm. Maxima, minima. अच्छा. Double derivative test. Yes. ये वाला थोड़ा सा मुझे वो लग रहा, मैक्सिमम निकालना है. हल्का सा एक हिंट देना सर, छोटी अरे सी. मैक्सिमा मिनिमा. नहीं, मैक्सिमम मैंने तो कैलकुलस लाना पड़ जाएगा ना. मैक्सिमा करने के लिए करना ही पड़ता है. ये तो लेट वन मास बी M, द अदर विल बी M minus M. नहीं, वो तो ठीक, पर ये तो दो वेरिएबल्स हैं. एक ही वेरिएबल है भाई, M is fixed. 10 किलो के 2 टुकड़े बनाने हैं. जी एम. स्मॉल m, एक स्मॉल m, अच्छा, एक M minus M. फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा? जी एम इंटू एम माइनस एम अपॉन डी एम बाय स्मॉल डी एम. नहीं नहीं, वी आर नॉट डूइंग इंटीग्रेशन यार. वाई सॉरी, आई एम डी एम. ओ नहीं, सॉरी, ये भी डी. स्मॉल मास भी नहीं लिया हमने, ये तो इंटीग्रेशन के लिए लेते हैं. डी बाई डी एम. वी आर नॉट डूइंग समेशन, वी आर डूइंग मैक्सिमा मिनिमा स्लोप. अच्छा. df by dm. ओके. ओके. M by r square minus 2m by r square. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो फिर इसका डबल डेरिवेटिव भी लेना होगा ना. You can cross check. नेगेटिव आ रहा है, तो दिस वैल्यू ऑफ m by 2 represents maxima. सो दूसरा हिस्सा कितना होगा? ये m by 2 आ रहा है, दूसरा कितना हो जाएगा? दोनों ही m by 2 हो गए. Let the first component be m, then the second component is this. Force from universal law of gravitation is this. Taking derivative of both the sides, this. Taking double derivative, negative. So therefore this represents maxima. So इसको 0 डाल दिया फर्स्ट डेरिवेटिव को.
m is equal to m by 2. This is first part. Double derivative से ये दोनों negative मास आ गया. एक तरह से इक्वल होने चाहिए. Yes. If the two masses are equal, you will get an answer like this. ठीक है. Good day. अच्छा, ठीक है, समझ आ गया. Yo. Yo, Honey Singh. नहीं, ऐसा नाम मत लो सर. हाँ, ये बात भी है. बहुत वाहियात सिंगर है वो. ना सर ना पैर, जो मर्जी बोल दो. Next. Okay, just a minute. Okay. No problem. फिगर कहाँ गई? ये रही. You can see it, right? No, I can't see the ये figure. नहीं, फिगर कहाँ है? फिगर ही नहीं दिख रही. अच्छा, you need the vertex. बना लो कोई. हाँ, नहीं फिर भी Okay. चाहिए होगा ना. हाँ, नहीं हाँ, नहीं तो रेफरेंस गलत हो जाएगा. ठीक है. Agreed. सेंट्रल मास वाला लग रहा, पता नहीं क्यों. centroid. Okay. ठीक. तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के इसमें कहाँ लिखा है यार? मतलब ये सेंटर में है ना, ये सेंट्रॉइड. Centroid is a location of center of mass. आपको तो फोर्स निकालनी है. अच्छा, ये होता सेंट्रॉइड फोर्स. किसी भी ट्राइंगल का अगर लेमिना होता है ये, तो सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास. वैसे भी मेरे ख्याल से अगर 3 पॉइंट मास भी हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास भी वही होगा, सेंट्रॉइड. व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2m प्लेस्ड है? 2m रखा हुआ है. अच्छा. ओह. सो यूर. 2m भी पॉइंट मास ही है. हाँ, ठीक है. It's an equilateral triangle or just like that? इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. Okay. ये समझ नहीं आ रहा है. क्या नहीं समझ में आ रहा है यार? If you have 3 mass 2m पे forces, फोर्स निकालेंगे मतलब. ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है. एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है. इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, लैमीज टाइप. या ये वर्टिकल है,
इसके दो कंपोनेंट ले लिए ये वाले, इसके भी दो कंपोनेंट ले ये वाले, ये दोनों का देख लिया रिजल्टेंट कितना आ रहा है। ये तो वर्टिकल है, इसका कोई हॉरिजॉन्टल होगा ही नहीं। ये दोनों का वर्टिकल है, इन दोनों वर्टिकल को, तीनों को वर्टिकल को रिजॉल्व कर लिया। तो वेरी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन। लामिस तो नहीं, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, इट्स अ वेक्टर क्वेश्चन। ये तो 3 vectors are like this. हम्म एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है, एक वेक्टर यूं है, बस। ये कितना डिग्री है? 30। ये 30 नहीं, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है। ये 90। एक तो वेक्टर ये वर्टिकल वेक्टर है, दो वेक्टर्स जो हैं एक 30 रिस्पेक्टिव एंगल्स पे हैं। एक का एंगल ये है 180, ठीक है, निकल जाएगा। 130, 180 एंड 30, 210। और दूसरे का कितना है? फोर्सेस निकाला था 2m और m के बीच में। हम्म, F इक्वल टू g 2m स्क्वायर g। हम्म। तो इसके भी यू हैव टू शुड कंपोनेंट्स। राइट ना, किसका किस पे निकल रहा है ये वाला। हाँ जी। एफ बीजी निकाल रहे हो, और सर फोर्स ये एक्सपीरियंस बाय जीसी जी। के अंदर, जीसी के जो हाँ, यहाँ पर है जीसी एफ में। एफ जी सी लिख लिया, हाँ। हाँ जी। राइट इट एज अ वेक्टर। एफ जी सी। हाँ, एफ जी सी। ये हो गया ना, ये ठीक। लगा दिया, तो ये एंगल ये वाला लेना पड़ेगा, 150 डिग्री। इसके कंपोनेंट्स एंगल तो चाहिए होगा ना कंपोनेंट के लिए। मतलब ये इसका। ये कितना है? दिस इज 30, हम्म, दिस इज 30। तो ये टोटल कितना हो गया? 150 नहीं हो गया? हाँ। तो 150 साइन ऑफ 150 ठीक। जे, प्लस उतना ही मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 150 आई। ये एफ जी सी आ गया। फाइंड एफ ठीक। जी ड्यू टू बी। आ गया समझ में क्या करना है? हाँ जी। एंगल निकालना है जीबी का, बस अब दोबारा से। ठीक है। जीबी का एंगल ये है 210 डिग्री। ठीक है। 180 प्लस 30। हाँ। लिख दो फिर, साइन 210 और कॉस 210। साइन 210, क्या होते हैं, थ्री एफ साइन सिक्सटी थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। फिर थीटा इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ओके। एफ ए बी का भी सेम ही रहेगा वैसे। डायरेक्शन वाइज आई थिंक विल बी डिफरेंट। डायरेक्शन वाइज अच्छा मतलब। हाँ, डायरेक्शन इसकी ये हुई ना, ये सॉरी। हाँ। तो 210 क्यों लेंगे हम? तो यही ले लेंगे ना, 30। 30। हम्म। 30 ले लेते हैं ना, रिपेलिंग थोड़ी ना, अट्रैक्शन है। जी के हाँ। ऊपर तो अट्रैक्शन है ना। सो जी इज फीलिंग अट्रैक्शन। सो जी इज फीलिंग अट्रैक्शन, विच मीन्स
हमें सब में 30-30 लेना हाँ तो होगा। नहीं 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 नहीं, जी तो अट्रैक्ट फील कर रहा है ना, तो जी के ऊपर ये फोर्स लग रही है 210। ठीक है। ठीक है। अरे 30-30 लेना अभी बोला, अब ठीक है। ओ भाई जी मैं ये है, 30 में ही नहीं है। जी इज गेटिंग अट्रैक्टेड। हाँ ठीक है, जी इज गेटिंग अट्रैक्टेड, ओके। 210 है ये। अट्रैक्टेड में तो ये हो गया था, मैं तो पहले ये बनाने वाला था तब बोल रहा था मैं 30। फोर्स ठीक इज है। इन दिस डायरेक्शन। दिमाग ना लगा रहे हो तो बोल दो हाँ जी ठीक है। ओ भाई अरे है तो वेक्टर, तो वो टू वेक्टर टू है हंड्रेड वो एंड तो। टेन ही लगेगा। हाँ मैग्नीट्यूड सेम होगा, 2m² gn। बट वेर इज हाँ, द डिस्टेंस यार? यू हैव नॉट इवन फाउंड आउट द डिस्टेंस व्हाट डिस्टेंस द। 1 है, ए जी बी जी और सी जी इक्वल तो है। है तो सही, बट 2 मीटर का है ना। 2 मीटर या 2 m है वो। इनके वो क्या है डिस्टेंसेस? डिस्टेंस है सी है। अच्छा 1 मीटर दिया तो हुआ है। हाँ अच्छा तो तो डाल वन दिया मीटर 2 m। 1 स्क्वायर हो गया, अच्छा ठीक हाँ है। 2m²। वो नहीं करना पड़ा। अच्छा उसका कंपोनेंट ले लेना पड़ा, ए बी बी सी से और ए डी से, वो नहीं करना पड़ा, ठीक है। मेक सेंस। गॉट इट। सही है। हम्म। ये भी एंगल्स देख लेते हैं। इसका इसका एफ ए जी का। 90 डिग्री, ये तो है ही वाई में। यू रेफरिंग टू जी ए राइट? या इट इज ओनली जे। ठीक है, 2m² gn। फिर तो 2m² gn हो जाएगा जे क्या। ठीक है, अपवर्ड्स। और एफ सी जी। हम्म सी जी तो लिख लिया, कितनी बार लिखेंगे? अच्छा इसमें सी जी नहीं, जी बी, हम्म गीगाबाइट। दिस क्लियरली शोज यू फॉरगॉटन हाउ टू डू वेक्टर्स। और तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी ना, मतलब यार यू सेम कैन ही क्लियरली डायरेक्शन है सी। वैसे। हाँ सेम का है यार, सेम एज इन। सेम एज इन, क्या कहते हैं मतलब। ये अट्रैक्शन है, ये है। तो एक ये हो गई कंपोनेंट और एक ये हो गया कंपोनेंट। तो माइनस जे और माइनस माइनस आई और माइनस जे है। वैसे तो यू टू शुड पुट एंगल, तो अपने आप ही आ जाएगी डायरेक्शन। यू डोंट नीड टू राइट प्लस एंड माइनस। Even if you write plus, sine 210 will give you negative, right? Why do you need to worry about direction? Just write sine 210 minus sine 30 होता है वो, अपने आप ही आ जाएगा। 210 या फिर लाइक 150। 150 है? 210 क्या। कैसे? 210 है। 210 आपने। ये रहा, 180 यहाँ तक है और बाकी 30 और है नीचे। अच्छा, अपने आप ही आ जाएगा, माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप आएगा। फिर इफ यू पुट अ नेगेटिव साइन देन पुट साइन 30 हाँ ठीक है। डायरेक्ट। 2m² हम्म जी जी। कॉस हम्म 210 आई। जी क्या। जे कैसे आ जाएगा कॉस में? Cos is always the एक horizontal एक मिनट, component. हमें ना पूरा वेक्टर्स भूल गया लगता है, वेक्टर्स रिवाइज करना पड़ेगा। हम्म वेक्टर भूल गया तो फिजिक्स क्या मतलब? 12th is a nightmare if you haven't done 11 nicely.
यही स्ट्रगल रह जाएगा वेक्टर का। वो चैप्टर समझ में आ जाएगा, वेक्टर नहीं करने आता। यू कुड डू वेरी इजीली अर्लियर। वो केमिस्ट्री के कैसे चीजें आ गई सब भूल गया मैं। वो थी। ठीक है, अब अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी आफ्टर स्कूल। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। आज माइनस मैं कॉस वेक्टर से 30, रिवाइज करता हूँ पूरा। माइनस कॉस 30। मेरी असाइनमेंट लो, पूरी करो और थ्योरी पढ़ो। कम बैक विद योर डाउट्स। दिस इज माइनस साइन 30, दिस इज माइनस कॉस 30। ये निकल जाएगा फिर। आगे समझ में या नहीं आया? ये समझ तो आ गया। वेक्टर रह गया। अब कोई क्वेश्चन इसके अंदर कुछ है ही नहीं। एड ऑल आईज एंड एड ऑल जेस हाँ जी। एंड फिनिश। हाँ जी, खत्म। कट भी जाएंगे अपने आप ही, ये कट जाएगा। हम्म, साइन 30 हो जाएगा, ये माइनस साइन होगा। ये माइनस कॉस 30 है, ये भी माइनस कॉस 30 है। ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है। और एक ये रह जाएगा, ये भी जे है। तो जे में रह जाएगा आंसर सारा। ओके। ओके। साइन 150 इज साइन 30, साइन 210 इज माइनस साइन 30, 210। इज माइनस साइन 30। डोंट टेल मी यू फॉरगॉटन ट्रिगो आल्सो। नहीं थर्ड नहीं, मैं उसको एक क्वाड्रेंट बार में। देख रहा था। अरे हाँ, नहीं नहीं यार, ट्रिक वो तो आती है। नहीं तो हाँ जी बोल दो, जान छुड़ाओ। अरे नहीं नहीं, ट्रिक वो आती है। चाहती है, ठीक 180 + 30। है। हाँ जी। आती है, इतनी तो आती है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, नहीं नहीं। नहीं बहुत नहीं, अच्छा ट्रिक वो है। आती है। ऐसी बात नहीं। वेक्टर तो नहीं आता, ये तो दिख गया, भूल गया। वेक्टर भूल गया मैं, मतलब आता था अच्छे से, आता भूल था। गया, साफ हो गया। पार्थ, कर्म करी जाओ। नहीं पार्थ, कर्म एक्चुअली कुछ मत करो, फल की चिंता करो बस। नया योगा का रूल है ये। ठीक है। पार्थ, कर्म कुछ ना करना, सिर्फ फल की चिंता करना। अरे वो बस मैं आज वेक्टर से रिवाइज करूंगा ठीक है। सबसे पहले तो। ये क्वेश्चन ही वेक्टर का था, और था ही क्या इसके अंदर। तीन फोर्स लिखने का फॉर्मूला था और उसके बाद वेक्टर की नॉलेज। दैट्स ऑल। एंड ऐड द वेक्टर्स आंसर। तो नेट डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, ये भी पक्का हो गया। एंड देन यू डू बी एंड सी। बी, व्हाट इज if the mass at the vertex is doubled, nothing हाँ will change। ठीक है। डबल हो जाएगी फोर्स, क्योंकि ये ठीक जो है। है, ये 4m² हो जाएगा। बाकी फिर भी सेम कटेंगे सारे। हम्म। कटने होंगे फिर भी कटेंगे ही। और जो वाई एक्सिस में नेट फोर्स आएगी वो डबल हो जाएगी, क्योंकि फोर्स, मास कुछ भी रख दो सेंटर पे, एक्स एक्सिस कंपोनेंट इज गेटिंग स्ट्रक। ठीक है। चलो, ओके। सी यू टुमारो देन वी विल कंटिन्यू टू स्टडी दिस चैप्टर। आई थिंक जो बाकी चैप्टर रह गया है, we will study acceleration due to earth now as a next topic, and the factors that affect the acceleration due to gravity, like altitude, like depth, like rotation, and the shape। मतलब फिर चैप्टर खत्म। नहीं, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद, सो टुडे इज व्हाट डे? 20th, टुडे right? इज टुडे इज 20 20th। 23rd evening we will finish it। खत्म। ओ, फिर ठीक है, वैसे 30th को पेपर है। आराम से करो ना, काफी टाइम है रिवीजन का। तो वो तुम्हें, मेरा तुम उसमें वेक्टर्स। भी गोल हो गया अभी रोटेशन में, मुझे पता है। वी विल रिवाइज इट। हाँ हाँ, सब ये रिवाइज हो करूंगा जाएगा। अभी। हाँ करना। अब उठा लो असाइनमेंट और करो। हाँ जी। आपके असाइनमेंट अभी मैं आपकी जो अपनी अभी असाइनमेंट्स भेजी है, बाकी सब्जेक्ट्स तो भी कर पहले दूँ। फिजिक्स करो भाई, सबसे पहले। बड़े अच्छा कम ठीक नंबर है। आते हैं उसमें। हाँ ठीक है, ठीक कर लूँ, हाँ हाँ। चलो।